Hello everyone, welcome back to the new video tutorial from Jammy's Biology. I hope you people are doing well. In this video tutorial we are going to talk about BARC Bioscience exam जिसे हम BARC भी कहते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम होती है ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के लिए होती है और इस एग्ज़ाम को क्लियर करके हम PhD भी कर सकते हैं और हमें साइंटिस्ट यानी साइंटिफिक ऑफिसर की पोजीशन भी मिल सकती है। सो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मोर और लेस आप में से सभी को इस एग्ज़ाम के बारे में पता होगा और इस एग्ज़ाम को क्लियर करने से मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी पता होगा। अगर नहीं भी पता हो तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में मैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और हम लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जिससे आपको इस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का भी आइडिया हो जाए। और लास्ट में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। मैंने खुद इस एग्ज़ाम का लास्ट अटेम्प्ट दिया है जो कि 14 मार्च 2020 को था। सो स्टे ट्यून एंड वॉच द कंप्लीट वीडियो। इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे वरना ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। इन फर्स्ट पार्ट वी विल सी द बेनिफिट्स ऑफ एग्ज़ाम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एग्ज़ाम, द एग्ज़ाम पैटर्न एंड द सिलेबस फॉर द एग्ज़ाम। In second part, we will discuss the level and the type of question, and we will also solve the 20 to 30 previous years questions. Make one thing very clear that there is no any previous year question paper available for this exam, क्योंकि वो लोग इसका पेपर लीक नहीं करते हैं और हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो मैंने एग्ज़ाम होने के बाद अपने मेमोरी बेस्ड रिकलेक्ट किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू वर्क एज अ गाइडेंस फॉर यू। ओके, let's start with the video. What is BARC Bioscience exam and its benefits? जैसा कि मैंने आपको बताया, this exam is conducted by भाभा Atomic Research Center to recruit the deserving candidates for the post of scientific officer. Then what are the benefits and the selection process for this post? There are two ways to get in. One is BARC Bioscience and another is GATE exam. The screening is mainly based on the rank. The shortlisted candidates are interviewed with senior faculty member at BARC Mumbai. After passing the interview, there is a 1-year orientation course for the engineering and science postgraduate, that is training for 1 year. This training is conducted at one of the 5 BARC training schools situated at Mumbai, Hyderabad, Indore, Kalpakkam. During this training, there is a stipend of 55,000 and one-time amount of 18,000 rupees. The trainee scientific officer who scored 50% aggregate during the training, they are posted as a scientific officer at DAE unit, that is Department of Atomic Energy. The stipend for this post is 95,000. What is eligibility criteria for this exam? The candidates with MSc in one of the following stream of life science, including microbiology, biochemistry, molecular biology, biotechnology, agriculture, genetics, botany, zoology, plant science, plant breeding, plant pathology, entomology, food technology, animal science, life science, biomedical science and biosciences with a minimum of 60% aggregate marks in MSc as well as BSc. There is an exception for 5-year integrated MSc or BTech food technology with minimum of 60% aggregate marks, and MSc final year students are also eligible for this exam. अब हम बात करते हैं BARC बायोसाइंस एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। BARC का जो एग्ज़ाम होता है वो इंजीनियरिंग फील्ड वालों के लिए भी होता है और लाइफ साइंस फील्ड वालों के लिए भी होता है, बट हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ बायोसाइंस वालों के लिए है। ओके, ये जो एग्ज़ाम है ये ऑनलाइन मोड एग्ज़ाम होता है, यानी सभी क्वेश्चंस आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे होते हैं और आपको आंसर करने होते हैं जस्ट लाइक गेट एग्ज़ाम। सेकंड थिंग के कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको टोटल मिलेंगे 100 क्वेश्चंस और जो टाइम मिलेगा आपको इसके लिए वो होगा 2 आवर्स यानी 120 मिनट्स। हर एक सही क्वेश्चन पे आपको मिलेंगे 3 मार्क्स, यानी ओवरऑल जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 300 मार्क्स का होगा।
देयर इज़ नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके 1 मार्क का डिडक्शन होगा। तो टोटल जो पेपर होगा इसका वेटेज होगा 300 मार्क्स। एक सही क्वेश्चन पे आपको मिलेंगे 3 मार्क्स और गलत करने पे आपका नेगेटिव होगा 1 मार्क्स। ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर भी प्रोवाइड होता है, जिसका मतलब ये है कि न्यूमेरिकल्स भी आते हैं बार के एग्ज़ाम में। थ्योरी भी मिलेंगी आपको, न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे। द टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑब्वियसली एमसीक्यू टाइप होगा। सिलेबस की अगर बात करें तो जो सिलेबस होता है वो जस्ट लाइक CSIR नेट होता है। CSIR नेट में जितने भी चीज़ें इंक्लूड होती है मोर और लेस सारी चीज़ें आपको बार के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगी। इस एग्ज़ाम का सिलेबस आपको एग्जैक्ट वे में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। अगर कहीं देखने को मिलता भी है तो ऑब्वियसली कंसीडर किया जाता है कि एनालाइज करके बनाया गया है, लेकिन एज सच आपको बार का सिलेबस कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। जहाँ भी इंफॉर्मेशन आपको इसके रिगार्डिंग मिलती है वहाँ यही चीज़ मेंशन होती है कि द सिलेबस इज़ जस्ट लाइक CSIR नेट, क्योंकि सारे के सारे सब्जेक्ट और जो यूनिट है वो बार के एग्ज़ाम में भी आते हैं। और अगर क्वेश्चन के लेवल की बात करें तो ऑब्वियसली हमें इस पर काफ़ी बड़ा डिस्कशन करना पड़ेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। तो देखिए, अभी यहाँ से मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं इसके अलावा क्या क्या चीज़ें होती है। जैसे कि मैंने बताया, नेगेटिव मार्क्स जो है वो 1 मार्क्स होगा। इस क्वेश्चन पे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। तो आपको ये चीज़ समझना है कि कोई भी क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स कैरी कर रहा है तो उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती है। 3 मार्क्स कैरी कर रहा है तो हम ये चीज़ तो समझ सकते हैं कि वो क्वेश्चन ना ही ईजी होगा ना बहुत ज़्यादा टफ होगा। लेकिन जो एक क्वेश्चन का लेवल होता है एवरेज एंड टफ के बीच, तो सेम क्वेश्चन का लेवल आपको देखने को मिलेगा बार के एग्ज़ाम में। और इस एग्ज़ाम में मेनली आपकी थिंकिंग कैपेसिटी चेक की जाती है। क्वेश्चन सिंपल होते हैं बट इस वे में डिज़ाइन किए होते हैं कि आपको लॉजिक लगाने के लिए सोचना पड़ता है। जब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको भी समझ आएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता चलूँ जो मैंने खुद एग्ज़ाम में एक्सपीरियंस की है। जो आपको टाइम ड्यूरेशन मिलता है दैट इज़ नॉट इनफ। 100 क्वेश्चन सुनने में लग रहा है कि 100 क्वेश्चन है, कम है, क्योंकि CSIR नेट में तो 100 से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ना। लेकिन वहाँ आपको 3 आवर्स मिलते हैं। लेकिन बार के एग्ज़ाम में आपको 100 क्वेश्चंस 120 मिनट्स में ही सॉल्व करने पड़ते हैं। CSIR नेट के एग्ज़ाम में जो पार्ट बी के क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और थ्योरी बेस्ड होते हैं, वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। लाइक आपको आंसर आता है तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लेकिन इतने कम ड्यूरेशन में कोई भी क्वेश्चन बार के एग्ज़ाम में सॉल्व नहीं होने वाला, क्योंकि देखिए हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो उसकी लेंथ एंड उसके पीछे का कंसेप्ट भी ठीक ठाक ही होगा। तो जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होते और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं होते। उसकी एक स्टैंडर्ड लेंथ होती है, तो उसको पढ़ने में भी आपका बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मैं 100 नंबर के क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाया था। 80 या 90 नंबर के क्वेश्चन तक पहुंचते पहुंचते ही टाइम ओवर हो गया था। सो मैं 90 क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व ही नहीं कर पाया था। इनफैक्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे पास टाइम ही नहीं था। सॉल्व करना या ना करना बात की बात है, जो लास्ट के 10-15 क्वेश्चन थे मुझे मौका ही नहीं मिला कि उसे देख सकूं। ऐसे भी हो सकता है कि उसमें से कुछ क्वेश्चंस इजी थे जो मैं सॉल्व कर सकता था। जो टाइम मिलता है वो सफिशिएंट नहीं होता है। ओवरऑल जो पेपर होता है वो लेंदी होता है। ईच क्वेश्चन लेंदी नहीं होता, लेकिन हम ओवरऑल अगर कंसिडर करते हैं तो काफ़ी लेंदी हो जाता है। ये एक्सपीरियंस बताने का मेरा इंटेंशन यही था कि आप पहले से ही अच्छे से तैयारी करें अगर आपने बार को टारगेट किया है तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय गाइज़, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी फ्रॉम होम। If you like the video, hit the like button, share the video with your friends. If you are new to our channel, hit the subscribe button and press the bell icon to stay connected with us. Thank you.